गुजरात के वडोदरा में बढ़ते सड़क हादसे चिंता का विषय बन रहे हैं। वडोदरा, जिसे कला नगरी और संस्कारी नगरी के नाम से जाना जाता है, लेकिन धीरे धीरे ये शहर अपनी एक नई पहचान बना रहा है। मौत का शहर, एक ऐसा शहर जहां सड़क पर चलना अब किसी जंग से कम नहीं है। पहले रक्षित चौरसिया का कांड, नशे में धुत 23 साल का नौजवान जिसके लापरवाही के कारण एक मासूम महिला की जान चली गई और 7 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। शहर इस सदमे से उभरा भी नहीं था कि कल रात को एक और बड़ा हादसा सामने आया। 70 साल के बुजुर्ग की सड़क हादसे में मौत हो गई। और ये जो एक्सीडेंट के मामले हैं वडोदरा शहर में, वो बढ़ते ही जा रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ एमएसयू के कई छात्र मौजूद हैं, तो चलिए उनसे जानते हैं, क्योंकि वो हमारे देश के भविष्य हैं, यंगस्टर हैं, तो उनसे ही जानते हैं कि उनका क्या कहना है बढ़ते हुए एक्सीडेंट मामलों को लेकर। आप जैसा कि अभी देख रहे हैं कि वडोदरा में अचानक से दिन ब दिन एक्सीडेंट के मामले हैं जो बढ़ते ही जा रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? વડોદરા શહેર એ સંસ્કારી નગરી તરીકે ઓળખાતું હતું, પણ હવે અકસ્માતની નગરી હોય તેવું લાગે છે. કેમ કે દિવસે તમે જોશો તો કોઈક ને કોઈક એવો બનાવ બનતો હોય છે, જીવલેણ બનાવ, કે ત્યાં એક્સિડન્ટ થયું છે. ગઈકાલે પણ તમે જોશો તો એક ભયંકર એક્સિડન્ટ થયું ને એમાં એક જણાએ જીવ ગુમાવ્યો હતો. થોડા દિવસ પહેલાંની વાત છે કે જે આખા દેશભરમાં ચકચાર મચાવી દીધો હોય એવો રક્ષિત કાંડ, એટલે કે આમ્રપાલી કારેલીબાગ વિસ્તારમાં ત્યાં એક મહિલાનું મોત નીપજ્યું હતું ને સાથે સાથે 8 જેટલા લોકો ઘાયલ થયા હતા. સૌથી પહેલાં કહીશ કે આ જે 90% એક્સિડન્ટ હોય છે તેમાં આ જે બી વાહન ચાલકો હોય છે તે નશાની હાલતમાં હોય છે. સૌથી પહેલાં તો આપણો એક ડ્રાય સ્ટેટ છે ગુજરાત છે, ત્યાં લિક્વર પણ મળતું નથી, પણ અત્યારે તમે જોશો તો ગલીએ ગલીએ ડ્રગ્સનું વેચાણ થઈ રહ્યું છે, દારૂનું વેચાણ થઈ રહ્યું છે. એટલે આના પાછળ એક મોટો રીઝન હોઈ શકે છે કે ડ્રગ્સ અને દારૂનું વેચાણ. પોલીસ તંત્ર મોટી મોટી વાતો કરે છે, અવેરનેસના પ્રોગ્રામો યુનિવર્સિટીમાં, કોલેજમાં, સમાજની વચ્ચે જ્યારે લઈ જતી હોય છે કે ભાઈ આપણે દારૂબંધી કરવી જોઈએ, દારૂથી દૂર રહેવું જોઈએ, ડ્રગ એડિક્શનથી આપણે દૂર રહેવું જોઈએ, તો આ બધા અવેરનેસના પ્રોગ્રામો ક્યાં જાય છે? આ એક્સિડન્ટ થયું ત્યાર પછી તમે જોશો કે કોર્પોરેશનનું તંત્ર જાગીને જે લારી ગલ્લાઓવાળા હતા તેમના તમામના લારી ગલ્લા ઉઠાવી લીધા, ધંધાઓ બંધ કરાવી દીધા, બેરોજગાર કરી દીધા. જ્યાંથી દારૂ વેચાઈ રહ્યું છે, જ્યાંથી સપ્લાય થઈ રહ્યું છે, જ્યાંથી ડ્રગ્સ આવી રહ્યું છે, તમે તેને કેમ નથી પકડતા? સવાલ પોલીસ તંત્ર પર બી ઊભો થાય છે અને પ્રશાસન પર બી ઊભો થાય છે કે કારણ કે તેમની આંખની નીચે, તેમની નજરના નીચે આ બધું વેચાણ થઈ રહ્યું હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. પોલીસ તંત્ર પર બી આમાં સવાલ ઊભા થાય છે, કારણ કે જ્યાંથી અત્યારે જે રક્ષિત કાંડ થયો, આપણે એક પર્ટિક્યુલર એક વ્યક્તિને આપણે ટાર્ગેટ કરીએ છીએ, પણ એનાથી આપણે આગળ વિચારીએ તો આ સપ્લાય ક્યાંથી થઈ રહ્યું છે, આની પાછળ કયા માણસો સંકળાયેલા છે. જો પોલીસ ખરેખર આના તપાસ કરે તો આ વસ્તુ પર રોકી શકાય છે. તમે મુદ્રા પોર્ટ જોઈ લો, અંબાની પોર્ટ જોઈ લો, ત્યાંથી લાખોની માત્રામાં, કરોડોની માત્રામાં ત્યાંથી ગાંજો, જે નશીલા પદાર્થ છે તે પાવડર ફોર્મમાં અહીંયા આવતા હોય છે. આમાં યુવા તો રવાડે ચડ્યું છે. અને ખરેખર જો પોલીસ પ્રશાસન, અહીંયાની ગવર્મેન્ટ અહીંયા કામ કરવા ઈચ્છતી હોય તો યુનિવર્સિટીના કેમ્પસમાં જોઈને કેટલા સ્ટુડન્ટ છે, કેટલા વિદ્યાર્થીઓએ આનું કન્ઝમ્પશન, કેટલા ડ્રગ એડિક્શન છે તેનું ટેસ્ટ કરવું જોઈએ, એનો આંકડો બહાર પાડવો જોઈએ અને કામગીરી કરવી જોઈએ. તોય 100% આ વસ્તુથી આપણે બચી શકાશે. કારણ કે ખાલી મોટી મોટી વાતો કરીને, મોટા મોટા વાદાઓ કરીને આ વસ્તુ રોકી શકાય એવું નહીં. કારણ કે યુથ જે છે એ આપણા નેશનનું પાવર છે. જે બી આપણી જે ફ્યુચર છે તે આપણા યુથ પર નિર્ભર હોય છે. અને જો આનામાં બચાવવામાં આજે નિષ્ફળ જશે તો ક્યાંક ને ક્યાંક આપણો ભારત દેશ છે તે પાછળ जैसे। आपके विचार से रोड मैनेजमेंट में कुछ सुधार लाने की ज़रूरत है? जो भी सबसे पहली बात की ट्रैफिक रूल्स जो है उनको स्ट्रिक्ट करने में आना चाहिए. जो भी ट्रैफिक्स जो पुलिस प्रशासन है उनको अपनी राउंडिंग जो भी होती है उनको ठीक करना चाहिए. और जो स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए, जिससे कि जो ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वाले हैं उन लोगों पे रोक लगे. क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कि ट्रैफिक रेड लाइट होती है फिर भी वो लोग ट्रैफिक तोड़ देते हैं और दूसरी साइड से गाड़ी आती होती है, ठुक जाती है ऑटोमेटिकली. फिर वही हर ऐसे केस निकलते हैं रात में, फिर हर जगह ऐसे वायलेशन के केस आ रहे हैं. तो इसकी वजह से गवर्नमेंट को इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, जो आगे जाके इस चीज़ों पर रोक लगे. आपके विचार से क्या सुधार लाने की ज़रूरत है प्रशासन? હું પહેલાં તો એવું જ કહેવા માંગીશ કે વડોદરાની પોલીસ જે છે એ આ હાદસો થયો પછી જ જાગી છે. જેમ કે આ એક્સિડન્ટ થયું પછી કમ્પલસરી હેલ્મેટ કરી દીધું, લોકોને હેલ્મેટ માટે ચલાણ કાપે છે. પછી રાતનું જે છે લારી ગલ્લા, જે લોકો પોતાનું પૈસા કમાવા માટે આવે છે તો એમને જ લારી ગલ્લાને એવું બધું બંધ કરી દે છે અને વગર કામના લોકોને પકડીને એમની પર ખાલી ખાલી એફઆઈઆર કરવામાં આવે છે. आप क्या कहना चाहेंगे बढ़ते हुए एक्सीडेंट मामलों को देखते हुए? कहीं ना कहीं देखेंगे तो आज के टाइम में जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर नशे की हालत में ड्राइविंग करने की वजह से हो रहे हैं. कहीं ना कहीं देखेंगे तो गुजरात ड्राई स्टेट से जाना जाता है, परंतु आज का जो युवा है वो गुजरात में नशे की राह पे चल पड़ा है.
कहीं ना कहीं ड्रग्स भी खुलेआम बिक रहा है। आज का युवा ड्रग एडिक्ट हो चुका है। कहीं ना कहीं ड्रग्स की हालत में युवा जो रहते हैं वो ड्राइविंग करके एक्सीडेंट कर रहे, निर्दोष लोगों की जान जा रही है। कहीं ना कहीं सरकार इसमें निष्फल गई है। युवाओं को शिक्षा नहीं दे पा रही है, रोजगार नहीं दे पा रही है तो सिर्फ नशा दे पा रही है। और बात करें तो अभी जैसे बड़ोदरा में एक्सीडेंट हुआ है, उसके बाद सरकार ने जो है सब जो कॉरपोरेशन की टीम है उनको भेज के सब लारी गल्ले जो है वो मध्यम वर्ग लोग जो दिन का रोजगार उनका जो होता है 300-500 रुपये, वो अपने लारी गल्ले चला के लेती है। परंतु अभी जो एक्शन जहाँ पे लेना है वहाँ नहीं ले रही है। कहीं ना कहीं गरीब लोगों को परेशान कर रही है। जहाँ ड्रग बिक रहा है वहाँ जाओ, जहाँ से आ रहा है वहाँ पे एक्शन लो ना। वहाँ पे क्यों अभी तक कार्यवाही नहीं हो रही है? वहाँ पे क्यों अभी तक ये लोग चुप बैठे हैं? क्यों गरीबों को परेशान कर रहे? कहीं ना कहीं आज के जो बच्चे हैं वो स्कूल जाते या घर से बाहर निकलते तो माता पिता भी चिंतित रहते जब तक बच्चा घर ना आए, क्योंकि आज का बड़ोदरा में जितना एक्सीडेंट का रेट बढ़ता जा रहा है दिन पर दिन। बात करें तो कल की तारीख में जो है एक वृद्ध की मृत्यु हो चुकी है कार एक्सीडेंट में। तो कहीं ना कहीं देखें तो सरकार को जो है ट्रैफिक रूल कड़क से कड़क करने चाहिए, और ये जो नशीले पदार्थों का बेचान हो रहा है, बिक्री हो रही है बड़े पाए पे, वो रोकनी चाहिए। और इसी के चलते इस वक्त हमारे साथ आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अशोक मेहता जी मौजूद हैं। तो चलिए उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि उनका क्या कहना है इस मुद्दे को लेकर। देखिए, ये जो एक्सीडेंट का व्हीकल एक्सीडेंट का मामला जो आ रहा है वो एक बड़ौदा के लिए सीमित नहीं है, हर जगह हो रहा है। और ये एक्सीडेंट्स जो अभी फैटलिटी इसमें बढ़ गई है, या तो एक्सीडेंट की जो मात्रा बढ़ गई है, हम उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। उनके रीजंस क्या है, कारण क्या है और उसका निवारण क्या है। सबसे पहले एक चीज़ है कि ओवर स्पीडिंग को लोग मानते हैं कि ओवर स्पीडिंग है एक्सीडेंट का कारण है। चौक्कस तरीके से ओवर स्पीड एक मुख्य कारण है, पर साथ साथ में वो भी समझना चाहिए कि कई व्हीकल ओवर स्पीड में जाते हैं, साथ में चलने वाले कई व्हीकल्स अंडर स्पीड में भी जाते हैं। वो अचानक से ब्रेक लगा देते हैं, अचानक से कहीं टर्न ले लेते हैं, अचानक से कुछ वो कर लेते हैं। तो ये ओवर स्पीड और अंडर स्पीड दोनों चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। ओवर स्पीड बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पर वेस्टर्न कंट्रीज़ में वैसा है कि जैसे आप रोड पे, मेन रोड पे बहुत कम स्पीड में भी जा रहे हैं तो वो भी एक दंडनीय है। वो ऐसा मानते हैं कि आप रोड को ब्लॉक कर रहे हैं, दूसरे ट्रैफिक को ब्लॉक कर रहे हैं अंडर स्पीड में जाके। तो ये एक स्पीड का मामला है। दूसरा बहुत अहम मुद्दा वो है, क्योंकि हमेशा लोग ड्राइवर की गलती मानते हैं, कोई भी ड्राइवर की या दोनों पक्ष में से। पर सबसे अहम मुद्दा वो है कि ये अगर एक्सीडेंट कम करना है या तो स्मूथ ट्रैफिक करना है तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंफ्रास्ट्रक्चर सही होने चाहिए। वो बेसिकली कॉरपोरेशन की और ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेवारी है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो रोड बड़े होने चाहिए, एनक्रोचमेंट नहीं होने चाहिए। जो रोड डिवाइडर बनाते हैं वो साइंटिफिकली होने चाहिए। रोड डिवाइडर के कट्स भी अच्छी तरह साइंटिफिकली प्रपोज करने चाहिए। ग्रिल लगाते हैं अंदर या बीच में जो प्लांटेशन करते हैं तो वो प्लांटेशन भी रोड डिवाइडर का कट जो होता है एटलीस्ट उसको 10 फीट छोड़ के प्लांटेशन करना चाहिए, क्योंकि जो कट है रोड डिवाइडर में कट है जहाँ से वाहन को दूसरी साइड राइट टर्न या दूसरी साइड मुड़ना है तो उनको पता ही नहीं चलता कि सामने वाली रोड पे क्या गतिविधियाँ है, क्या ट्रैफिक खड़ा है, क्या नहीं। तो ये छोटी छोटी बाबत है, पर ये सब वो है। जैसे रोड डिवाइडर एक्सेंट्रिक बना दिया, जो सेंटर में रोड के बीच में होने चाहिए उसके बदले गोलाई पे बना दिया, तो वो सब मैं आई सर्जन के तौर पे बताता हूँ कि इतने ब्लाइंड स्पॉट हो जाते हैं कि वाहन चलाने वाले को, ड्राइवर को वो पता नहीं चलता कि आगे 10 फीट आगे, 20 फीट आगे क्या होगा। ब्लाइंड स्पॉट होता है, तो वो नहीं चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में बेसिकली बम्प की साइज़ भी जो है वो भी कोई हमारे वहाँ साइंटिफिक नहीं है, उसका कोई वो नज़रिया नहीं है कि कहाँ बम्प कैसे कितनी साइज़ के रखने चाहिए। तो वो भी उसके ऊपर कोई पेंट नहीं होता है, रिफ्लेक्टर कहीं रोड डिवाइडर पे नहीं होते, तो फिर वाहन चालक जो है वो समझ में नहीं आता उनके लिए, और वो गाड़ी की स्पीड या तो ज़्यादा बढ़ा देता है या कम कर देता है, और वो या तो रोड डिवाइडर से टकरा
जाता है या दूसरे व्हीकल से टकरा जाता है। तो ये सब चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़रूरी है और उसके ऊपर गवर्नमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को सबसे पहले वो करना पड़ेगा कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो, उसके बाद में ही हम ड्राइवर को या उस बाकी लोगों को सलाह दे सकते हैं। अभी तीसरी चीज़ कि जो ट्रैफिक पुलिस का काम है कि ट्रैफिक पुलिस को वो जानना पड़ेगा कि कहाँ बम्प लगाने का है, नहीं है, कहाँ वो बैरिकेड लगाने का है, रोड ब्लॉक करना है, नहीं करना है। जो ये ट्रैफिक सिग्नल आजकल सब जगह लगा देते हैं, पर वो ट्रैफिक सिग्नल की भी कितनी ज़रूरत है, और ट्रैफिक सिग्नल भी लगाओ तो भी इतना एटलीस्ट सोचो कि वो सिंक्रोनाइज मैनर में हो, उसमें जो टाइमर है वो डायनेमिक तरीके से काम करे। ये तो हमने देखा है कि सुबह 6 बजे भी वो सेम 90 सेकंड बंद रहता है और दोपहर को 11 बजे भी 90 सेकंड बंद रहता है, तो वो गलत चीज़ है। वो ट्रैफिक के हिसाब से, ट्रैफिक के लोड के हिसाब से टाइमर सेटिंग होना चाहिए। वो बहुत सिंपल है, पर हमारे फील्ड स्टाफ वो या तो करते नहीं है या ऑटोमेशन लाए नहीं है। तो ये सब चीज़ होने के कारण जब लोगों को कोई एक साइड से ट्रैफिक नहीं है और बिल्कुल 90 सेकंड, 120 सेकंड, 60 सेकंड ऐसे ही खड़ा रहना पड़े, तो वो गलत चीज़ है। और फिर वो टेम्पटेशन होगा व्हीकल ऑनर, ड्राइवर को, कि वो जंप करेगा या कुछ भी करेगा। तो ये ट्रैफिक पुलिस को ट्रैफिक सिग्नल के बारे में बहुत ज़रूरी है। वडोदरा की सड़कों पर बढ़ते इन हादसों को सिर्फ एक आंकड़ा मानकर छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि ये सिर्फ एक दुर्घटना नहीं बल्कि लापरवाही और सिस्टम की नाकामी का नतीजा है। जब परिवार में एक सदस्य की भी मौत होती है तो वो पूरा परिवार उजड़ जाता है। हमारे प्रशासन को इस मामले में गंभीरता से कदम उठाने की ज़रूरत है। ट्रैफिक मैनेजमेंट में सुधार लाने की ज़रूरत है। नशाबंदी को और भी ज़्यादा सख्त करने की ज़रूरत है, ताकि भविष्य में किसी मासूम की ज़िंदगी दांव पर ना लगे। और इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए देखते रहिए VNM TV।